Hello students, my name is Ankur Agrawal. I am teaching engineering mechanics and this is my sixth lecture. So let's proceed. Let's see so far we what we have done in plane trusses. We have done the introduction. In introduction, we have seen the components. In component, we have seen that it's composed of the member, joint. Joint should be a pin joint or hinge. And we have seen in the truss there are two supports. One support is a hinge support, another is a roller support. We have seen that why we use the roller support, just because of the temperature variation of the environment. There is the expansion or contraction in members, so there are some motion, like it can be some motion in the truss. That's why we use the roller support at one part. This is the hinge support and one is the roller support. Because of the contraction or expansion in this member, suppose this is the truss in this member A, B, C. In this member, if there is a compression or contraction because of the temperature variation, if is there, then that could be compensated with this roller support. So that's why we provide the roller support that we have seen in components. And further, what we have seen some assumptions, and we have seen the condition. On what condition any this truss, on what condition we will call the 2D structure as a truss. Okay, we have seen this. Further, we have moved to the condition, like when we will call the truss is a perfect truss, right? We have moved to these conditions. That condition is the if m equals to 2j minus 3, where m is the number of member in the truss, given truss, j, this is j is the number of joint. Okay, and if this condition fulfills, then the truss is called as a perfect truss. If not, and this condition is not true, let's say if m is greater than 2j minus 3, right, then it called redundant. Okay, and if it's reverse, if it's less, then it's called deficient. Okay, if more, it's called redundant, and if not, it's called deficient. We have seen this. And then we have seen how we will calculate the reactions. We have seen the procedure, how to calculate the reactions. We have seen the procedure of this reaction, how we calculate the reactions, and what is the concept behind. We just consider the whole truss to be the equilibrium, another equilibrium. Then we can apply the two conditions. First is force, vertical force, summation of all vertical force. That means summation of all the force in x direction or horizontal, that to be 0. Summation of all the force in vertical, that to be 0. And moment at any joint, that should be 0. Any joint, right? This is all we have seen in the previous lecture. Okay, then for the then to solve the actual questions of stress, we have seen it. There are two methods. One is, first method is method of joints, and second is method of section, right? Method of sections, method of section. So we will consider one section. Okay, this we have seen. Okay, and we have also seen some numericals on this method of joint, and we'll in this lecture we will going to see some more numericals over this method of joint. Okay, we have seen 4 points related to the method of joint, which is very important. What you have seen this, if any joint in the truss and it is connected to one member, suppose, right, and this member, if this member pushing the joint, right, then this member itself feel the compression.
We have seen it like this. If the member push the joint, then member itself feels the compression, and if a member pull the joint, then this member will having the tension, or you can say tensile type load. Okay, these the point for this. Second point is for the compression. Okay, in third point, what we have seen at a joint, if there are three members, and out of three, the two members are collinear. Okay, suppose A, B, C. So two members are collinear, and there is a third member which is attached to the same joint, and this member is non-collinear. Okay, and if this joint doesn't have any load or any reaction, okay, then this third member, suppose this is the D point, this third member should having the force or doesn't having any load over this member. थर्ड मेंबर जो नॉन कोलिनियर है उसमें कोई भी लोड नहीं होगा, ये हमने देखा था, ये पॉइंट मैंने. ओके, द लास्ट पॉइंट सेज दैट इफ any joint having a two non-collinear member, and at this joint there is no load and there is no reaction. Okay, so these two members, suppose there is A, B, C, so these two members doesn't have any load. If we calculate the force along it, it come out to be 0. We can directly use this in competitions. Okay, so let's proceed for some more questions over the method of joint. So this is our fifth question on method of joint. ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज देयर आर सम डाउट्स इन दिस. डाउट्स आर लाइक, बच्चों ने पूछा कि सर इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट द हिंज और रोलर सपोर्ट, बिकॉज हमने कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व किए थे विदाउट कैलकुलेटिंग द रिएक्शंस. सो दिस वाज डाउट. ठीक है, तो मेरा आंसर इसमें ये है कि पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके, मतलब क्वेश्चन आप जब भी कर रहे हो तो करने से पहले सोचो कि क्या एक्चुअल में जरूरत है इसमें रिएक्शन निकालने के लिए. अगर आपको लग रहा है जरूरत है, देन यू विल गो टू द कैलकुलेशन फॉर द रिएक्शन. अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मैं इसको बिना रिएक्शन से कर सकता हूँ, देन गो फॉर दैट. बिकॉज इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम यू नीड टू सेव योर टाइम. ठीक है, आप में टाइम सेव किया, यू कैन अप्लाई दिस सेम टाइम इन अदर क्वेश्चन. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली वॉच करना है, एंड वी कैन सी दैट ओके दिस प्रेजेंट क्वेश्चन, यस आई कैन सी दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट द गोइंग फॉर द रिएक्शन कैलकुलेशन, एंड आई विल डू दिस. ओके, सो दिस कम अप विद द प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज दिख जाएगी. ठीक है, आप 5 क्वेश्चन में रिएक्शन निकालोगे, आपको दिखेगा हाँ यार ये तो ऐसे भी हो जाता, यार ये वैसे भी हो जाता. ओके, दिस कम विद द प्रैक्टिस. ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको 10 क्वेश्चन करा दूंगा, 10 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको वो चीज दिमाग में नहीं बैठेगी. ठीक है, वो एक हाथ को चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ताकि ये चीज आ पाए. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन. So yes, in the previous question, what I have done with, by the traditional method, I have calculated reactions, and I have discussed can we also can solve the last question by the Leibniz theorem. Okay, so I will calculate this question using Leibniz theorem. Okay, so in this question, we have to calculate the force in S cube. ठीक है, हमें S cube पे फोर्स निकालना है, यानी इस मेंबर पे फोर्स निकालना है S cube पे. ओके, सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले देखो. आपको जो पिक करने हैं ना, आप जो भी आप क्वेश्चन पिक कर रहे हो उसमें जो पॉइंट्स पिक कर रहे हो पहले, क्योंकि आपको देखो अगर आप रिएक्शन नहीं निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, लैमिनीज लगाओगे. लैमिनीज लगाने के लिए उसमें 3 मेंबर चाहिए. ठीक है, 3 मेंबर के लिए या तो आपका कोई लोड लगाओ, जैसे कि ये है लोड लगाओ, और यहाँ पे 2 मेंबर अननोन निकाल सकते हैं. लैमिनीज सेज कि मेरे को एक बता दो और बाकी उसी की डायरेक्शन में ले लो. ठीक है, अगर आपको एक पता है तो मैं सारे निकाल सकता हूँ, ये दोनों निकाल सकता हूँ अगर आपको एक पता है. ठीक है, सेम चीज है वो. आपको ऐसे पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे अगर मैं जाता हूँ तो क्या मेरे को एक मेंबर पता है, हाँ पता है, 9 जो किलो न्यूटन लग रहा है ये मुझे पता है, यानी इसके बिहाफ पे मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ. दूसरी बात, क्या मुझे इस पॉइंट पर सारे एंगल पता है,
ये अगर मैं मालूम एक मेंबर है, तो इस मेंबर से ये एंगल पता है कि हाँ मालूम है 90 डिग्री है। ये मेंबर है, इस मेंबर से ये मेंबर का एंगल पता है, हाँ मालूम है थीटा डिग्री है। ठीक है, सो इफ वी नो द एंगल, then we surely go for this and we can calculate the force in PQ and force in PS। ठीक है, अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन ये वाला पॉइंट पिक किया होता, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो यहाँ पे कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 और ये लोड लग रहा है 5। यहां पर मैं लेमनीज नहीं लगा सकता। लेमनीज में कब लगाऊंगा? जब आप इन दोनों मेंबर का जो फोर्स है उसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट निकालो, तो यहाँ पे 3 मेंबर बनेंगे, तब मैं लगा सकता हूँ। पर डायरेक्टली मैं इसमें जानी नहीं लगा पाऊंगा। हाँ मैं टी पे लगा सकता हूँ, बट टी पे क्यों नहीं लगा पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पर अभी करंटली यहाँ पर हमें कोई भी फोर्स नहीं पता है। ठीक है, अच्छा हाँ टी पे मैं नहीं लगा पाऊंगा। वाई? बिकॉज देर इज द रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन मिल रहा होगा वर्टिकल, मैं टी पे नहीं लगा पाऊंगा, सॉरी। बट आई कैन अप्लाई दिस एट आर, कैन आई? नो, आई वोंट, बिकॉज यहां पर भी दो रिएक्शंस मिल रही हैं, दो फोर्स मिल रहे हैं इसको। एक मैंने बताया था आपको, हिंज पे दो मिलेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैं यहां पर भी नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, तो इन 5 जॉइंट में से 3 तो वैसे ही फेल हो गए, बचे मेरे पास दो, एक पी और एक एस। पहले किस पे लगाऊं? पहले लगाऊंगा पी पे। वाई? बिकॉज यहाँ पे मेरे को नोन चीज है, यहां से मैं पी एस निकाल दूंगा, एंड फ्रॉम दिस पी एस, सॉरी, फ्रॉम दिस पी एस आई कैन कैलकुलेट द नोन, जो अननोन। ये मालूम पड़ गया फोर्स, तो ये पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, राइट? सो लेट्स मूव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको चीजें दिखेंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आई पिक द फर्स्ट जॉइंट पी। लेट्स just I'm sorry, just free this। अब देखो, अब मेरे को किस टाइप का लोड, यहाँ पे आपको पड़ रहा है पुशिंग, तो मेरे को पुशिंग ही लोड लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप एंगल, ये मुझे गिवन है 90 डिग्री, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? आपको ये एंगल यहाँ पे गिवन है, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, बिकॉज दो आपके दो पैरेलल साइड्स हैं, वहाँ पे एक आपका ट्रांसवर्स लाइन चल रही है, तो ये दीज आर द ट्रांसवर्स एंगल्स जो कि इक्वल है। ओके, ये एंगल निकल सकता है। हाउ विल कैलकुलेट दिस एंगल? आपको यहाँ पर साइड tan theta, it will come out to be 2 by 0.5, that means 4 by 3। और हमें इसका ये पता है कि अगर ये 4 by 3 होगा तो ये एंगल कितना होगा। ठीक है, आपको ये याद भी कर लेना चाहिए, इट विल गिव यू सम वेरी गुड हेल्प इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। इसकी वैल्यू होती है 53 बॉक्स। ठीक है, और अगर यही अगर आपका 3/4 होता तो होता आपका 37, राइट? तो ये आप याद करें तो बेटर है, बट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में ऐसे याद करने की। Okay, so so we know this angle. This angle is 53. ठीक है, and this angle will be the 360 minus this and this। ठीक है, यहाँ पर okay, so this angle will be 37 degree। Okay, so this P point, second थोड़ा सा डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये मेंबर आपका पी से जा रहा है, एस से जा रहा है पी तक, तो मैंने यहाँ पे एस पॉइंट दे दिया, मतलब नेम कर दिया, और यहाँ पे क्यू दे दिया, जस्ट लाइक टू हैव द सेम फीलिंग, ये मेंबर ये था। ठीक है, तो ओके, जस्ट लाइक द लेमनीज लिखते हैं, तो यहाँ पर 9 किलो न्यूटन लग रहा है ये। ठीक है, 9 किलो न्यूटन डिवाइड बाय द एंगल बिटवीन द अदर टू दिस, सो दिस इज द साइन ऑफ थीटा। अब जिस मेंबर के लिए निकालना डायरेक्टली वो मेंबर को हमें निकालना है पी एस, तो हमने किया एफ पी एस अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। अब मेरे को पी एस निकालना है। ठीक है, पी एस के जो अदर टू मेंबर्स हैं वो तो 9 किलो न्यूटन है, ये पी क्यू है, तो 90 डिग्री दे रखे हैं, तो यहाँ पे 90। ठीक है, तो सिंपली जो पी एस निकल के आ गया, वेरी सिंपली निकल के आ गया, ये होगा 9
this is 1 divided by sin थीटा, ठीक है। और अगर sin थीटा निकालोगे यहाँ से तो sin थीटा आएगा आपका 4/5, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे तो जस्ट वी हैव कैलकुलेट द PS 45/4 किलोमीटर। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पकड़ लेता हूँ, वी हैव डिस्कस दिस। नेक्स्ट पॉइंट पकड़ लेता हूँ, दिस पॉइंट। तो मैंने ये पॉइंट एस ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एस पॉइंट, यहाँ से पी से आ रहा है, ये ऊपर क्यू से आ रहा है और ये टी से आ रहा है। एज वी नो, हमें ये पता है व्हाट इज पी एस, ठीक है। सेम ही होगा अगर जो चीज़, अगर आप देखो यहाँ पे हमने ये कंप्रेशन लिया और ये क्योंकि 9 कंप्रेशन था, ये पॉजिटिव आया तो ये कंप्रेशन में चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कंप्रेशन लिख लेते हैं और इस कम आउट टू बी कंप्रेशन, और हमने कंप्रेशन लिया था, ठीक है। तो अभी जो ये फोर्स है वो कंप्रेशन है, तो मैं अभी भी इसको टूवर्ड्स दी पुशिंग फोर्स दिखाऊंगा, पुलिंग नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ पुलिंग हो जाता है, ठीक है। दिस इज द कंप्रेशन इस, और फिर क्योंकि अगर इसमें कंप्रेशन है तो मैं इसमें भी कंप्रेशन ले लूंगा, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर्स इन एस क्यू, पी एस हमें पता है, सो लेमनीज लगा लेते हैं यहाँ पर भी। सो एफ पी एस अपॉन दी साइन, अब यहाँ पे जो एंगल आएगा दिस एंगल, ठीक है। अब देखते हैं ये एंगल क्या हमें गिवन है। यहाँ देखिए सेम चीज, ये आपकी दो पैरेलल लाइन है और उसमें ये वाली लाइन आपका ट्रांसवर्सल है। दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। यस, ये गिवन दिस एंगल, एंगल कितना, थीटा। सो दिस फोर्स एफ पी अपॉन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, दिस इज साइन थीटा, इक्वल्स टू, क्या निकालना हमको, एफ एस क्यू पे हमें निकालना है। तो अब एंगल जिसके अदर टू ये है नहीं, थीटा प्लस 180, तो साइन 180 प्लस थीटा, क्लियर। तो सॉल्व करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। पीएस इज 45 बाय एफपीएस इज 45/4, ठीक है। इसको यहाँ ले आता हूँ और साइन 80 से प्लस जाएगा, थर्ड कॉलम चला जाएगा, तो ये जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, और ये है आपका साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एफ यू, माइनस में आ जाएगा माइनस ऑफ 45/4 किलो न्यूटन, ठीक है। माइनस मीन्स क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमने किया कंप्रेशन, और पी एस भी, एस क्यू भी हमने कंप्रेशन में लिया, दैट मीन्स तो ये फोर्स है पी एस। देखो अगर दैट मीन्स देखो एफ एस क्यू हमारे पास आया -45/4 किलो न्यूटन, और ये टाइप क्या था, ये टाइप, ठीक है। दैट मीन्स जो हमने लिया इसे अज्यूम किया कंप्रेशन, बट ये नेगेटिव है, दैट मीन्स क्या है, अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एस क्यू इक्वल्स टू 45/4 किलो न्यूटन टेंशन, यहाँ पे था कंप्रेशन, ठीक, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर हैविंग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सिविल ब्रांच, बिकॉज उसमें एक बिकॉज वो गेट क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा सा एक यूडियल गिवन है ट्रस्ट में, ओके। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इन BD member there is a UDL, ठीक है। and what is a UDL, it's having a unit kilonewton per meter, ठीक है। it's having a unit kilonewton per meter and P is the UDL, मतलब amount है P का, and the total load what it is getting, it's getting, this is the length L which is same as BD, तो ये लेंथ BD का क्या होगा, L हो जाएगा, right, and this total
जो लोड लग रहा है बीडी पे वो कितना होगा, P इंटू एल, राइट, P इंटू एल किलोमीटर। ओके, सो अब आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन? इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व, ठीक है। अब हालांकि हमने ये अज्यूम किया है कि हम कभी भी इसमें यूडीएल नहीं लेंगे, पॉइंट टू नहीं लेंगे, बट हमने ट्रस्ट पढ़ा है ना, तो बट ये क्या है, क्वेश्चन फ्रेम का है, ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेम का है, स्ट्रक्चर का है। सो इन दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज एक सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिकॉज आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। रेशियो कैलकुलेट करने में क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको सिंपली आप क्या करोगे, इसको पूरे को इक्वल में मान लोगे, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन आ गया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। जो आपके बेसिक रूल्स हैं वो थोड़े से, जैसे कंडीशंस है वो थोड़ी सी वायलेट करते हैं, बट जो बेसिक लॉज हैं वो तो लग सकते हैं, जो बेसिक आपके प्रिंसिपल्स है वो तो लग सकते हैं, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस क्वेश्चन। करना क्या है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, मतलब करना क्या है इसमें। सिंपली अगर मैं इसका रेशियो निकाल, सोचो अगर मैं इसका यहाँ पे रेशियो निकाल दूँ, यहाँ पर और यहाँ पर रेशियो निकाल दूँ, यहाँ पर दो आएंगे, ठीक है, ऐसे भी ले लो, ये लो, ठीक है, यहाँ पर दो रेशियो आएंगे, आर ए वर्टिकल, वी है, दिस वी, दिस इज आर ए एच जो कि जीरो आने वाला है, दिस इज आर एफ, और यहाँ पे एक लोड लगा, लोड वर्टिकली डाउनवर्ड है, लोड वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ कि ये लोड नीचे सेंटर पे लग रहा होगा, मान सकता हूँ सेंटर पे लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं मान लिया कि ये लोड यहाँ पे सेंटर पे लग रहा होगा, कितना होगा इसको पहले निकालो, कितना लोड है पूरे में, अभी हमने निकाला था, इट्स पी डिवाइड बाय पी इंटू एल, ये था टोटल लोड कितना है, ये पी इंटू एल किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे भी पी इंटू एल लोड लग रहा है, और ये जो आपकी लेंथ हो जाएगी यहाँ पे लोड लग रहा है फ्रॉम दिस बी पॉइंट, ये होगा एल बाय टू, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिमेट्री विदाउट एनी कैलकुलेशन मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आर, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या होगी, आर वी प्लस आर एफ टू बी जीरो, व्हेन आई डू दैट कि वर्टिकल फोर्स का समेशन क्या होगा, जीरो होगा, उसका इंप्लीकेशन क्या आएगा, आर ए वी प्लस आर एफ इक्वल जीरो, ठीक है। दैट मीन्स इन सॉरी नॉट जीरो, माइनस पी एल इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू पी एल, ठीक है, ओके। कितना हमें पता था, और ये सिमेट्री है, आप थोड़ा सोचो, देखो ये सिमेट्री है, यहाँ लोड पड़ रहा है उतना ही, ये एल बाई टू प्लस एल, यहाँ भी एल बाई टू प्लस एल, यानी दोनों में इक्वल लोड डिवाइड होने वाला है, ये आपको समझ में आता है सिमेट्री से। सिंपली आप इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, यहाँ पर क्या होगा, पी एल बाई टू, ये होगा पी एल बाई टू, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, डेट मीन्स जो ये फोर्स आने वाला है वो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ठीक है, क्लियर। आप मोमेंटम भी कर सकते, मोमेंटम मेथड से भी कर सकते हो, मोमेंट सॉरी नॉट मोमेंट, मोमेंटम मोमेंट आप निकालो ए पे, आपको हो जाएगा, ये निकल आएगा एक्सेक्ट, बट सिमेट्री से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो टिल नाउ वी हैव कैलकुलेट द रिएक्शंस बस अप्लाइंग सिमेट्री, सिमेट्री हमने रिएक्शन निकाल दी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन देखो हमें निकालना है, ये इस पे निकालना है और इस पे निकालना है। अब जैसे ही मैंने देखा कि मुझे इस पे लोड निकालना है, ईसी सीई में निकालना है और सीबी में निकालना है, तो तुरंत क्लिक किया, कौन सा हमने जो चार पॉइंट पढ़े थे उसमें थर्ड पॉइंट वाला क्या था, कि आपका कोई जॉइंट है, जॉइंट, एंड इन दिस जॉइंट कोई भी लोड नहीं लग रहा, कोई भी रेशन नहीं लग रहा, और दो मेंबर कोलिनियर है, याद आया, दो मेंबर क्या है, कोलिनियर है। लेट्स टेक दिस जॉइंट एज इट इज, ठीक है, जॉइंट है, और इस पर ए, सॉरी, ए, यहाँ बी है और यहाँ ई, ठीक है, और कोई भी इस जॉइंट पर लोड नहीं है, ना ही रिएक्शन है, डेट मीन्स, और ये दोनों ए सी एंड सी ई क्या है, कोलिनियर है, ये क्या है, कोलिनियर,
ठीक है, कोलिनियर। दैट मीन्स बीसी में कोई भी फोर्स नहीं आएगा। जब मैं देखा डायरेक्टली हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला कि आपका बीसी में कोई भी लोड नहीं आएगा। दैट मीन्स दिस एफ बी सी इज 0। आपका सेकंड वाला सॉल्व हो चुका। ठीक है, जो आपका फर्स्ट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले इस पॉइंट पर लैमिनीज लगाता हूँ, वहां से एसी मिलेगा एंड दैट एसी, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हुआ, इस पॉइंट पे लैमिनीज लगाऊंगा तो इस पॉइंट पे लैमिनीज लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को कि एसी इक्वल्स टू सी, फोर्स इन सी। यहाँ पे अगर लैमिनीज लगाऊं तो ये मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, इन ऑल व्हाट हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई द लैमिनीज एट दिस पॉइंट। कैसे लगाऊं लैमिनीज, दो तो मेंबर हैं ही और एक यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, ओके, ये जो रिएक्शन आपका लेट टेक दिस ए पॉइंट। ए पॉइंट लेते हैं। ए पॉइंट पे एक है आपका ए सी, एक है आपका ए बी, ये है रिएक्शन। ठीक है, इस पॉइंट ए बी सी 45 डिग्री। ठीक है, ओके, अगर हमने इसको कंप्रेशन लिया है तो मजबूरी है, कंप्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमने निकाला, ये कितना आया था, पी एल बाय 2। ओके, पर्पज इज टू कैलकुलेट द फोर्स ए सी। लगा दो लेमिनीज, दो में दो पे लगा दो, एफ ए सी डिवाइड बाय द एंगल बिटवीन द अदर टू। एंगल बिटवीन अदर टू ये ए सी है, तो ये आपका 90 इज 90 एंड ये आपका कितना होगा 135। ठीक है, 180 माइनस 45, 135, 135 प्लस 90, ओके, इट्स कम आउट टू बी 225। ठीक है, so or in other words what we can say, it's 180 plus 45। ठीक है, and this should be equals to PL by 2, ये वाला लोड, और इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, दूसरे जो फोर्सेस हैं उसके बीच का, दैट मीन्स 1 अपॉन साइन ऑफ 40। ठीक है, ओके, जस्ट टेक दिस टू नेक्स्ट पेज। So in this AC equals to PL by 2। अच्छा, ये साइन 80 थर्ड कॉलम जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और साइन 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 कट जाएगा, क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा सिंपली, क्योंकि हमने ये कंप्रेशन माना है। दैट मीन्स AC इज PL by 2 टेंशन पोटेंशियल। ठीक है, ये ठीक। तो लेट्स मूव टू जॉइंट सी। जॉइंट सी पे हमने देखा था, अभी लगा लेते हैं एक बार और। जॉइंट सी, जॉइंट सी, यहाँ पर क्या है, ई है, राइट, ये सी है, यहाँ से ए आ रहा है एंड इट्स गोइंग टू द नंबर का नाम क्या है, बी, गोइंग टू बी। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, जीरो है। ठीक है, अब देखो एंगल, अगर मैं ये फोर्स लेता हूँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं ये फोर्स लेता हूँ एंगल कितना, 90 डिग्री। दैट मीन्स एफ ए सी कौन, 90, एफ सी ई, सॉरी, एफ सी ई अपॉन 90। ये ले रहा हूँ फोर्स तो ये एंगल आएगा, ये ले रहा हूँ फोर्स तो ये एंगल आएगा। ठीक है, ओके, दैट मीन्स ठीक है, ए सी बताया मेरे को कितना है, पी बाय 2 इन दिस टेंसाइल, तो ये भी क्या होगा, टेंसाइल होगा। अभी टेंसाइल क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेंसाइल का इसको रिवर्स कर दिया, तो मैं इसको यहाँ से खींचूंगा और उसको बोल दूंगा कि कितना है ये है पॉजिटिव पी एल बाई 2। ठीक है, तो वो भी ये जगह ये क्या आएगा, पॉजिटिव पी एल बाई 2, बिकॉज मैंने ये भी यहाँ लिया है। ठीक है, इसको भी ठीक। माई आंसर इज एफ सी ई इज पी एल बाई 2 विच इज टेंसाइल। ठीक है, सो
लेट्स रिकैप। हमने इस क्वेश्चन में देखा कि यूडीएल लगा हुआ है। हमने बस ये देखा कि क्या मैं इसमें रेशियो निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने रेशियो निकाला, ठीक है, तो मैं कोई कुछ नहीं देखा, मैंने उसको फ्रेम मान लिया, मतलब एक बॉडी मान लिया, उस बॉडी पे एक लोड लग रहा है, उस पोजीशन पता है मेरे को, और उसके जो सपोर्ट्स पता है मेरे को, वहाँ पे रेशंस लगते हैं। सिंपली मैं रेशन निकाल ली। रेशन निकालिए, उस पार्ट को भूल जाओ, कोई बीडी मेंबर भी है। भूलने के बाद मैंने ये देखा कि क्या मैं अगर निकाल सकता हूँ। सी पॉइंट देखा, सी पॉइंट पे कोई लोड नहीं है, कोई रेशन नहीं है, ठीक है। अब वहां पर दो कोलिनियर थे, एक नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर तो भैया जीरो होगा, तो मैंने निकाल दिया। अब दो कोलिनियर है, कोलिनियर में जो फोर्स है वो सेम जाएंगे बिकॉज ऑफ लैमिनिस, ठीक है, सेम जाएंगे फोर्स। अब जो सेम फोर्स आ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि जब ये जो थर्ड में था 90 डिग्री पे था, सेम फोर्स जा रहे हैं, दैट मीन्स आप AC निकाल लो, दैट विल इक्वल्स टू द C, ठीक है। दैट व्हाट वी हैव डन। सो लेट्स मूव टू द our next question. So this is the seventh question. Just pause the video and try to do this question by yourself. And definitely, I think you can do this question because इसमें कुछ भी नहीं करना. Okay, just try. It's very simple. Okay. So while pausing the video, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये तो ट्रस्ट ही नहीं है, ये कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। दोनों चीज को मैंने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया है मैंने, ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, नॉट ट्रस्ट, ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, बट वी कैन डू इट हियर, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब क्या है, यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, बट यू कैन कंसिडर दैट यहाँ पे कोई एक मेंबर है, या तो मासलेस मेंबर है, कुछ भी गिवन नहीं है तो, या फिर इसको मान लो स्ट्रिंग है। कैसी स्ट्रिंग? मासलेस है और इनएक्सटेंडेबल। इट विल ट्रीट एग्जैक्टली एज द मेंबर, सेम एज दिस, ठीक है। तो अब क्या होगा? टेंशन होगी, टेंशन होगी इस मेंबर में, अगर हम मानेंगे ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसका एफबीडी बना, लेट्स कॉपी दिस, इसका एफबीडी बना, कट करो, ऐसे कट करो। अब देखो, इस मेंबर को जब खींच रहे थे, यहां से इस पॉइंट से खींच रहे थे, तो कहां फोर्स लगा था? इस पे, यहां फोर्स लगा। और जब ये पार्ट खींच रहा था, ठीक है, तो इस पे कहां फोर्स लग रहा था? क्योंकि ये फोर्स लग रहा था इस पे, यहाँ पे इसको खींचने के लिए। सेम चीज यहाँ पर, इक्वल एंड अपोजिट आपकी टेंशन डिवाइड हो जाएगी। ये आपका टी होगा, आपकी सेम स्ट्रिंग है, बट वी कॉन्ट से ये आपकी सेम स्ट्रिंग है, सेम मेंबर नहीं, ये अलग हो सकता है। तो इसको मैंने टी डैश ले लिया, ठीक है। एंगल आपको गिवन है, एक फोर्स आपको गिवन है, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पे एंगल पता है? हाँ, ये एंगल पता है, ये आपका 30 डिग्री एंगल है, 60 दे रखा है, 30 डिग्री एंगल हो गया। तो सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पर लैमनीज लगानी है और क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है। आई विल गिव द आंसर, force AB, or in our this we have taken this T, okay, this come out to be, so these are the answers, okay. Force in AB, ये आपका ये होगा, T होगा, and T dash we have considered that is the force BC, okay. This is the reactions at A and C. अब देखो, किसी का सर क्वेश्चन आ सकता है, सर देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, सर ये तो हिंज होगा ना, तो यहाँ पर टू फोर्स होंगी, एक तो वर्टिकल होगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी। यस, बिल्कुल ऐसा होगा, बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगी, क्योंकि हमें इसको इक्विलिब्रियम मानना पड़ेगा ना। इक्विलिब्रियम मानेंगे, कोई भी आपका वर्टिकल में है, चलो ठीक है, मान लिया है, बट यहाँ पर देखोगे ना, ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। जो ये वर्टिकल यहाँ पे दिख रहा है, इट विल बी एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू दिस वर्टिकल फोर्स, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये 20 किलो न्यूटन निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका इसके क्योंकि ये जो आपका है, इसका कंपोनेंट लोगे वर्टिकल, तो ये 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब सर आप डायरेक्टली कैसे कर दोगे? भाई डायरेक्टली मैं इसलिए कर सकता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी रब दिस, सी, मैं डायरेक्टली क्यों बोल सकता हूँ? सपोज आई हैव दिस थिंग, राइट। अब मैं इसको खींचूंगा, यहाँ इस पॉइंट पे खींच रहा हूँ, ठीक है। तो क्या उस पर लोड लग रहा है? इस साइड लग रहा है, ठीक है। सपोज ऐसा हिंज, ये हिंज है, मूव कर सकता है। अब मैं इसको यहाँ खींच रहा हूँ,
तो इस पर कहाँ लोड लग रहा है, इस सेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका हिंज है, ठीक है, और वो किसी भी पॉइंट पे इंक्लाइंड है, कैसे भी है, बट उस पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दी मेंबर लगेगा, अलोंग दी स्ट्रिंग लगेगा। अगर वो मेंबर इंक्लाइंड है तो ठीक है, अगर वो मेंबर इंक्लाइंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम चीज है, आप सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट ऐसा है, यहां पे से खींच रहा हूं, तो जो रिएक्शन का रिजल्टेंट होगा, रिएक्शंस का रिजल्टेंट जो वर्टिकल हम हॉरिजॉन्टल मानते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो एग्जैक्टली इस मेंबर के अलोंग होगा, क्योंकि ये मेंबर खींच रहा है। राइट, सेम चीज ए पे हो रही है, मेंबर ए जो खींच रहा है वो ऐसे खींच रहा है। ठीक है, सो member A having the only the horizontal reaction and member C having the reaction which is in the direction of BC. ठीक है, अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाता कि हाँ कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सी, व्हाट इज वर्टिकल रिएक्शन एट सी, उस केस में आप इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। ठीक है, योर डाउट इज नॉट अनजेन्युइन, सही जेन्युइन डाउट है, क्योंकि मैंने सिखाया है ऐसे, बट you have to understand that also कि आपका equivalent reactions क्या है, क्योंकि उसने reactions पूछे हैं, it's not like कि vertical horizontal। ठीक है, okay, so let's move to our next question. So these are the two last question which we are taking in this method of joint. Okay, so in this first question, मतलब इन दोनों क्वेश्चन में करना क्या है, आपको सिंपली जो भी आपको दे रखा है, दे रखा है, इसमें हमें पता लगाना है कि भाई इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जिसमें नॉन जीरो फोर्स, मतलब मेंबर वो जिसमें कोई भी फोर्स नहीं हो, उस मेंबर में कोई फोर्स नहीं हो। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन स्पेशली डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि आप वो पॉइंट्स लगा सको लास्ट के 3। ठीक है, ओके सर, स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। ओके, बिफोर डूइंग मैं इसको कराऊं से पहले आप इसको करने की कोशिश करो, जस्ट पॉज दिस एंड ट्राई टू डू दिस। ठीक है, ओके, सो लेट कंटिन्यू। मैं इस क्वेश्चन को एक पेज पे लेता हूँ। Let me take the first question on the separate page. This is the first question. So in this find the number of member having a zero force in them. Okay, so मुझे member बताना है जिसमें zero force हो। Okay, let's start. पहले बनाते हैं इसका FBD। यहाँ पर एक फोर्स पड़ रहा होगा इस टाइप से, एंड इधर यहाँ पर वर्टिकली पड़ रहा होगा। ठीक है, वी हैव अप्लाइड दिस थिंग्स, और क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अभी ये चीज देखो कि यहाँ पर जो RAV है यही एडजस्ट करेगा, RAH ये नहीं आएगा पिक्चर में, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रस्ट में कोई भी आपका हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो ये पिक्चर में नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही लोड है। लेट मी इरेज दिस, ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। पॉइंट ए पर यहाँ पर कितने मेंबर है, AB, AD and this vertical reaction. Vertical reaction can be also taken as the vertical member से कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे दो कोलिनियर मेंबर कह सकता हूँ, रिएक्शन है और जो AB है, ये दो कोलिनियर रिएक्शंस है। अब देखो हमने पॉइंट किया था, पॉइंट ए पे हम देख रहे हैं दो कोलिनियर आपके मेंबर्स हैं एंड थर्ड मेंबर इज अटैच्ड। अब देखो मैं मेंबर बोल रहा हूँ उसको, मैंने रिएक्शन को बोल दिया मेंबर, आप ये बात समझो, मैंने इसको मेंबर बोल दिया है। तो ए जॉइंट है, ये एक मेंबर, सपोज कोई भी एक्स मेंबर है, कोई एक्स मेंबर, और ये बी मेंबर है, और ये मेंबर से जो लोड आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है, और इस पे कोई लोड होगा वो ऐसे आएगा, और यहाँ पर एक और मेंबर है ये। तो ये जॉइंट ए है, उस पर दो कोलिनियर मेंबर हैं, तो इस वाले में तो गया ना, इस वाले में कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो हमारा पे ये निकल गया, इस पे कोई फोर्स नहीं होगा। आई होप ये समझ आया। ठीक है, पिक कर लो, ये वाला पिक कर लो। अब इस पे तो कोई रिएक्शन नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो ये वाला मेंबर गया, काट देता हूँ, वो बेटर सिंबल है, इस पे कोई लोड नहीं होगा। ठीक है, सेम ये वाला पकड़ लो, इस पे कोई फोर्स नहीं होगा, सेम ये पकड़ लो, इस पे कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हमने ए को किया है, ऐसे ही आप एफ को कर लो, यानी इस वाले में कोई भी लोड नहीं होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ओके, एट बी पॉइंट यहाँ पर ये लोड आएगा और ये लोड हो सकता है, वी कैन नॉट जज डायरेक्टली। यहाँ पर ओके, यहाँ लोड नहीं है, यहाँ लोड नहीं है, बट ये सारे नॉन कोलिनियर है। ओके, ई पॉइंट पे लोड लग रहा है और यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं। ओके, ओके, आई थिंक यस, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन 5 members are there. ठीक है, क्लियर? So let's move to next one. This one, let me take to the next page और इसको आप genuinely खुद करेंगे। I'll also help out, but इसमें naming नहीं है, just do naming first. Let's say this A, B, one second, C, D, E, F, G, H, I, J, and the last is K. ठीक, so let's proceed. बना लेते हैं इसमें रिएक्शंस। यहाँ पे एक तो वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये एक आपका ये होगा वर्टिकल, राइट। और आप ये देखोगे कि जब वर्टिकल है ये इट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद दिस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं है, तो ये दोनों इक्वल इन अपोजिट होंगे। सो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट आप वो पॉइंट देखो जहां पर हम डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। ओके, दिस पॉइंट बी। पॉइंट बी पे देखा कि ये आपके दो कोलिनियर फोर्स हैं और कोई लोड नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, दैट मींस ये गया जीरो। डी पॉइंट सेम, बी सॉरी सी डी एंड डी कोलिनियर फोर्स है, कोलिनियर है, यानी ये आपका गया। ठीक है, कोई लोड नहीं, कोई रिएक्शन नहीं इस पर। ऐसे ही एफ, ये गया। ऐसे ही हमने एच पकड़ा, ये वाला गया। ठीक है, अब जो जो मेंबर नहीं रहे, ठीक है, अब इट विल एक्ट एज नो मेंबर, कोई कोई फोर्स नहीं है उससे, तो उसे हटाते हैं और फिर देखते हैं आगे। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस एंड उसको हटाते हैं। ओके, जस्ट गिव मी वन सेकंड। तो मैंने इसको कॉपी करके नीचे रख दिया। तो लेट जस्ट रिमूव द मेंबर्स। ये मैम वन सेकंड, ये मेंबर नहीं है, ये मेंबर नहीं है, हटा दो। ये मेंबर मतलब 40 तो हटा दो, जस्ट जस्ट टू सी कि क्या हो रहा है। ओके, ना आप देखो। अब यहाँ पर ओके, ये देखिए दो कोलिनियर फोर्स है, सॉरी दो कोलिनियर होंगे मेंबर्स, ये आपका थर्ड है, तो ये गया। ऐसे ही से ये जॉइंट है, ये दोनों इसमें कोलिनियर है, इट मींस इसमें कोई फोर्स नहीं। ठीक है, ये ऐसा, तो ये हट गए। ओके, अब इन्हें भी हटा लो। लेट मी कॉपी दिस। ओके, तो हटा दो। ओके, लेट्स सी नाउ। अब देखो, अब पॉइंट सी देखो। पॉइंट सी पे एक मेंबर इसको मान लो हमें, और एक ये हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी लोड नहीं होगा। अगर यहाँ नहीं होगा दैट मीन्स यहाँ भी नहीं होगा। क्लियर? दैट मीन्स ये रिएक्शन आपका जीरो हो जाएगा। रिएक्शन वर्टिकल दिस जीरो, अगर ये जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। आई जीरो। अगर अच्छा ये आगे इसको लेते हैं, जॉइंट से करेंगे करेंगे। अब देखो ये वाला पॉइंट देखो, ये कौन सा पॉइंट है? नॉन कोलिनियर, और इसको कोई रिएक्शन नहीं, कोई लोड नहीं, दैट मीन्स ये गया, ये गया, तो ये गया। ठीक है, अब ये गया तो इस पे भी कोई लोड नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ से बोलने वाले थे अभी कि ये आपका रिएक्शन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई लोड नहीं है। ठीक है, ओके। और देखिए अगर इस हो गया, हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था अगर इस फोर्स में भी इसमें जीरो है, दैट मीन्स इसमें भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोलिनियर थी। ठीक है, कितना हो गया आई थिंक, और इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये जॉइंट के है, उसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं है हमें। जॉइंट इसके मेरे कोई नॉलेज नहीं। ओके, या दैट्स इट नाउ। अब काउंट कर लेते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिर हमने इसको हटा दिया, तो ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सॉरी सिक्स्थ नहीं, हमने फिर कौन सा किया था, या दिस इज वन, सेवन, दिस एट, ओके। उसके बाद हमने ये पकड़ा था, दैट मीन्स दिस वन इज नाइन्थ, टेंथ। इसी को प्रोसीड करते हमें बोला था कि ये दोनों कोलिनर थे, और यहाँ वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल चलना था यहाँ पे, ये भी ये आपका 11th कर देता हूँ या 12th कर लो, या फिर इसे 12th कर लो, ओके क्लियर। सो 12 मेंबर्स इन दिस क्वेश्चन था, find the number of member having zero force in them. So in this 12 members are there. I hope ये आपको समझ आया हो. Okay, so with this we'll just finish here, and in next lecture we will see how we calculate the numericals in method of section. Okay, so okay, goodbye. Let's meet in next lecture.